Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Abhishek back with another video, and today's video will be very interesting as I am reviewing and telling you about 8 different type of filling materials. Yes, 8 different type of filling materials which I am using in my clinic and which you can also use depending upon the patient, which can vary from different patients. And ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, if you're watching me for the first time, I'm Dr. Abhishek, working as leader in Department of Oral Medicine in Bhubaneswar, and I make videos on dentistry and anything related to dentistry, dental related topics. So my first restorative material which I'm preferring the most is this thing, is 3M ka 350 XT. So it's a very good product which I feel I am using for the past 7 to 8 years. And it is known as 3M ESP Filtech Z350 XT. So this I basically use for anterior restorations, for smile designing, and I'm also using ये एक शेड है, particularly ये A2 शेड है. I am having many different kind of shades, enamel, dentine, and for anterior I would suggest कि इससे better material कुछ भी नहीं है. वैसे टोकुयामा का भी composite आता है, वो भी बहुत अच्छा है. अभी तक मैंने उसका यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है इट्स अ वेरी गुड मटेरियल. और अगर आप पोस्टीरियर रेस्टोरेशन करना चाहेंगे तो P60 एक आता है 3M का P60 कंपोजिट, वो भी बहुत अच्छा होता है. सो दिस आई एम यूजिंग, आई एम मैचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स एंड आई एम डूइंग एंटीरियर रेस्टोरेशंस. And with this I am also doing some bulk filling after doing the root canal treatment of some patients. And for core buildup I am not using this. For core buildup I am using some different material which I will show you later in my later videos. So ये restorative material का कलर जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत बेटर है कंपेयर टू अदर रेस्टोरेटिव मटेरियल्स. 3M इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, काफी रिसर्च बेस्ड कंपनी है. तो ये हो गया एक मटेरियल जो कि रेगुलर यूज करता हूं मैं अपने क्लिनिक में. अभी तक खत्म भी हो गया, तो मंगाना है दूसरा. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द टेम्फिल G. यस, दिस इज नॉट अ परमानेंट रेस्टोरेशन, दिस इज फॉर इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन. इट्स अ टेम्पोररी मटेरियल, temporary filling material. So usually I use this while doing the root canal treatment. If I want the patient to come for a second and third appointment, तो उस टाइम पे हम temporary filling देते हैं in between the appointments. And if we want to give some intracanal medicaments like calcium hydroxide after the root canal, so we fill with temporary filling. So this is that Temfil G. इसकी consistency बहुत अच्छी है and it's very easy to use. So I am using, personally I am preferring this Temfil G. Okay. Now comes this GIC type 1 lining and luting cement which I use for restorations. Basically not restorations, for fixing the crowns and prosthesis and bridges. I am using basically from this one. I am using from the past 10 years. I am using this same company. There are other materials also which are available which are very good indeed, but I am comfortable with this. It is quite budget friendly. It's this bottle cost around 2,800 rupees. And abhi there are other materials like Vocomeron which is also good. You can also use Shofu ka luting cement, which is the consistency of Shofu is very good. उसका भी बाद में वीडियो बनाऊंगा. It's very good. So these are the basically अभी 3 cements हो चुके हैं. कभी कभी basically कभी अगर मेरे क्लिनिक में कंपोजिट या फिर GIC टाइप 2 खत्म हो जाए या फिर टाइप 9 खत्म हो जाए, तो मैंने 2-3 बार इसको भी फिलिंग मटेरियल हिसाब से यूज किया था, थिक कंसिस्टेंसी करके. एंड बिलीव मी गाइज, ये एज अ फिलिंग मटेरियल भी बहुत अच्छा है. तो कभी कभी जुगाड़ करना पड़ता है. अगर आपके पास कुछ मटेरियल खत्म हो जाए या फिर आप खुद क्लिनिक में नहीं है और मटेरियल नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस एंड रिप्लेस लेटर आफ्टर 6 months विद अ बेटर रेस्टोरेशन, राइट. Next restoration which I have with me is GIC type 2. It is most common use material in the dental clinics for restorative things. So इसकी strength काफी अच्छा है. So water powder ratio 1 scoop of powder with 1 drop of liquid gives a very good consistency and it's very, इसका setting time भी medium है, ज्यादा देर तक सेट भी नहीं होता है और ज्यादा जल्दी भी सेट नहीं होता. You can work on the filling very nicely. और अभी अगर मैंने अपने टाइप 1 का मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कुछ वीडियोस पहले मैंने बनाया था कि अबाउट PFM क्राउन्स, व्हाई डज द PFM क्राउन चिप, तो उसमें मैंने पूरा मिक्सिंग प्रोसीजर इसका बताया था. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए उसको. तो ये भी एक बहुत अच्छा सीमेंट है. ये मैं यूजुअली पोस्टीरियर GIC रेस्टोरेशन जिससे करता हूँ. कभी कभी बल्क फिलिंग भी कर देता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट. अगर सर्वाइकल अब्रेशन है तो मैं कभी ये मटेरियल यूज करता हूँ, अदरवाइज आई यूज कंपोजिट.
Now next comes another temporary restorative material which is Cavitemp, which I have in my clinic. So what is the basic difference between Cavitemp and Tempfil G? बेसिकली दोनों सेम है, लेकिन मुझे कैविटम के कंपैरिजन में अगर टेम्फिल जी यूज करता हूँ तो ज्यादा बेटर फील होता है, उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है. ये थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है. ओनली डिफरेंस इज ये एक मेटेलिक उसमें आता है, ये एक प्लास्टिक के डब्बे में आता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. एंड इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फ्लेकी है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी क्ले टाइप की है, तो आई फील दिस इज बेटर. पर इसका एक वो प्रॉब्लम ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इसको यूज करते हैं तो वो व्हाइट कलर का क्लीन करने के बाद भी नहीं जाता है टेम्फिल जी में, लेकिन दैट नॉट अ बिग प्रॉब्लम. यूजुअली यू कैन क्लीन योर इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये हो गई. वन मोर रेस्टोरेशन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एमालगम रेस्टोरेशन भी मैं रखता हूं कभी कभी अपने क्लिनिक में, क्योंकि कभी कभी जब रेस्टोरेटिव जो टूथ होता है इन क्वेश्चन, पेशेंट डजंट वांट टू एक्सट्रैक्ट द टूथ एंड ऑल द 3 वॉल्स ऑफ पर्टिकुलर टूथ आर डिस्ट्रॉयड. तो आई यूज दिस फाइन ग्रेन एमालगम रेस्टोरेशन. थोड़ा सा पिंच आई डू मिक्स विद GIC एंड आई मेक अ मिराकल मिक्स. अगर आप मिराकल मिक्स नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं. मिराकल मिक्स होता है जब आप थोड़ा सा एमालगम पाउडर GIC टाइप 2 या फिर टाइप 9 के साथ मिक्स करके कोई भी रेस्टोरेशन करें, उसको बोलते हैं मिराकल मिक्स. तो ये मैं अपने क्लिनिक में रखा हूं. बेसिकली जब मैं क्लास 2 फिलिंग करता हूं तो आई प्रिफर दिस मटेरियल, क्योंकि जितने भी सारे मटेरियल मैं अभी तक बता चुका हूं कोई भी क्लास 2 में नहीं करता है, मतलब टिकता है. ओनली दिस मटेरियल स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्लास 2 पर्टिकुलरली क्लास 2 रेस्टोरेशन अगर हो रहा है, अगर पेशेंट रियली रिक्वायर करता है कि नहीं कहीं बाहर से आता है, तभी मैं मतलब वंस इन अ ईयर आई यूज दिस. सो पढ़ा हुआ है मेरे पास 5 साल से. आई एम नॉट यूजिंग दिस मटेरियल नाउ, as you must have known the amalgam has a lot of toxicity and all. So basically I don't use it. Only few cases I am using this amalgam. So better you don't buy only, क्योंकि आजकल कोई amalgam या फिर सब लोग टूथ कलर रेस्टोरेशन चाहते हैं, aesthetic रेस्टोरेशन चाहते हैं. Nobody goes for amalgam, right? But it's still there with me, so that's why I'm showing it to you. Another material which I had earlier in my clinic is this zinc cement. So sometimes I need to fix the crowns temporarily, like temporary 5 या 7 दिन के लिए ये मुझे जिंक फॉस्फेट सीमेंट है मेरे पास, जिस कभी कभी मैं क्राउन फिक्स करता हूँ और उसको निकाल भी इजिली देता हूँ. तो एक टेम्पोररी सीमेंटेशन है, टेम्पोररी क्राउन लगाने के लिए एक सीमेंट है जो कि अपने क्लिनिक में तो कि नया का नया पड़ा हुआ है, खत्म ही नहीं हुआ है अभी तक. तो दिस आई एम यूजिंग रेयरली. इफ द पेशेंट नीड्स समटाइम्स लाइक एक दिन के लिए क्राउन लगा के फिर अगले दिन ही can come back. ये जब only for emergency purposes. So these are the filling materials I am having in my clinic. कुछ ज्यादा हाई-फाई सामान नहीं है, नॉर्मल रेस्टोरेटिव मटेरियल्स ही है. और भी काफी टाइप के रेस्टोरेटिव मटेरियल्स मैं यूज कर चुका हूँ, जो मैंने वोको का बताया आपको, शोफू बताया. दीज आर ऑल गुड मटेरियल्स. आप ट्राई करिए, जिससे भी आपको थोड़ा सा इजी लगता है उसी मटेरियल्स को आप अपनाइए. और बस आज का वीडियो मैं यही बताना चाहता था कि व्हाट एंड ऑल रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आई यूज इन माय क्लिनिक. आप भी अगर कुछ डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसे ट्राई कर पाऊं. और कमेंट करिए और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए साइड अंडर व्लॉग आपकी पर्सनल क्वेरीज जानने के लिए. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे.